नमस्कार, गुरजीत वालिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम देखेंगे गोल्डन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। जैसे कि आपको सबको पता है, देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। इस समय चल रहा है, क्या चल रहा है? फॉग नहीं, इस समय चुनाव चल रहा है। जी हाँ, उसी की तर्ज पर आज गोल्डन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एसएसबी 39 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट सर और अपनी टीम के साथ एक चुनाव अभियान बच्चों को अवेयर करने के लिए कि बच्चे घर जाके अपने माँ बाप, बड़े भाई बहन को बताएं और जब वो 18 साल के हों तो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए चुनाव करें, वोट करें। वोट की महत्ता को समझाने के लिए आज असेंबली के अंदर एक प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम की झलकियाँ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं चुनाव के बारे में। तो वोट ज़रूर करें भाई, जिसको भी जहाँ पे हैं ज़रूर वोट करें। जय हिंद, जय भारत। We welcome you, sir, on behalf of our school. So, you must be thinking that there is something special about this day. And we know that elections are coming, they are near. So for this only, we have arranged, a school has organized a program for the election awareness program. So we'd like to just start our program with a beautiful thought. उठकर देखिए इस सुबह का नजारा, हवा है ठंडी और मौसम भी है प्यारा प्यारा। सो गया चांद और छुप गया हर एक तारा, कबूल करिए मेरा गुड मॉर्निंग हमारा। तालियां एक बार जोरदार हमारे गेस्ट के लिए। Once again, good morning to all the dignitaries, guests, delegates. With a great joy and immense circulation, I feel privileged to extend my warm welcome to all present over here in our voting awareness program that is for today, Matdan Mahadan. I welcome Mr. Sanjeev Kumar, Deputy Commandant, that he has lent his precious time to come for this program. And on behalf of the management, I thank you all for providing your great presence to join in this program to enhance the program. So to begin with the program, here is a very important ritual, that is the lighting of the lamp. Light is a symbol of brightness and prosperity, and sunlight expels the darkness and might and happiness. To make this morning blessed and evoke the goddess Saraswati by kindling the lamp of knowledge and wisdom. For seeking the choicest blessings, I invite our chief guest along with our management to lighten the lamp in front of the goddess Saraswati. Please, sir and ma'am. आज वीणा सुना दो मधुर गाने से, आज वीणा सुना दो मधुर गाने से, द्वार पर हम तेरे सब खड़े शान से, द्वार पर हम तेरे सब खड़े शान से, आज वीणा सुना
सरस्वती शारदा ज्ञानदाता हो माँ, भर दो भंडार जग की विधाता हो माँ, भर दो भंडार जग की विधाता हो माँ। हम सब बच्चे तेरे हंस रहे शान से, हम सब बच्चे तेरे हंस रहे शान से। आज वीरा सुना दो मधुर तान से, आज वीरा सुना दो मधुर तान से। करना चाहते हैं अनुभव आपसे वो बताता है जो आपको करना चाहिए। तो चलो कर आए मतदान, छोड़ के सारे काम, पहले मतदान। A very warm and pleasant morning to Honorable Chief Guest, respected Principal Sir, Vice Principal Sir, Coordinator Ma'am, Discipline Sir, teachers and all my dear friends. Today, it's me Pooja Bharti along with my girl. Which people can choose their representatives is called election. Once Abraham Lincoln said the words, which are of the people, by the people, for the people, which means people of a democratic country can choose their government by themselves without any pressure. They are free to vote for any candidate according to their preference in order to perform the required action to make the government and to run the country. Now firstly, we should start our day by remembering our Almighty. So firstly, let's start English prayer. Let's join our hands, close our eyes and start the prayer. Oh God, infinity wisdom and source of all knowledge, bless us and help us so that we can study well and remember what we have learned. Amen. Get ready for pledge. Please put your right hand forward and repeat the pledge after me. India is the country and all Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of it, rich and wide heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Every fresh thought can spice up our day, so I would like to call Shashi Yadav with his beautiful thought of the day. Good morning, everyone. Today's thought of the day is leadership is not about the elections. It is about the next generations. I repeat my thought. Leadership is not about the elections. It is about the next generations. Thank you. Have a wonderful day. To add a new word in our vocabulary here, I would like to call Mank Hormat for today's word of the day. Good morning. Today's word of the day is barnstorm. To travel, it means to travel a lot of small towns and give political speeches so that the political leaders can get support of people. Thank you. Now I would like to call a small little champs with the group song. कागज पे टुकड़े जमीन पे गिरे थे, कितना गंदा लगता है, उनको उठाओ डस्टबिन में फेंको, कितना अच्छा लगता है. Dear students, she is giving regarding how you have to have the cleanliness of your surrounding. So in the same manner, the little ones from the junior wing is going to present a group song. Listen to the music, clap your hands, clap your hands, clap your hands. Listen to the music, clap your hands. Turn around, turn around. Listen to the music, turn around. Tap your feet, tap your feet. Listen to the music, tap your feet. Jump up high, jump up high. Listen to the music.
birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shruti. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless dear Shruti. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ujjwal. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless dear Ujjwal. Happy birthday to you. So beta, for the program, as we all know that we have gathered here for the awareness of a noble cause, that is voting, Matdan Mahadan. As a democratic country, India is built on the foundation of election. Our parliament and legislature are for the people, by the people, to the people, and so the voting is a constitutional right and privilege to have. We take a grant by the Constitution, and it's a right to vote that is given by the Constitution, which can play a very important role in changing the scenario of our country, or building up a government that is built directly by the people. So to respect this, whatever the sacrifices are made by our freedom fighter, so we have to take in that mind what they have fought for us, and they have given us the Constitution, a democratic country, and for those only, for respecting the feelings of those people who has fought and made this a right for us, making India a democratic country. So we are heading towards this program, and you must be thinking that why we are not eligible for voting. But still there is a program in our school, because today you are the future of our country. We are awareing you, we are informing you about your right, democratic right. And you can also go to your home, to your parents, to your friends, to your relatives, and tell about this program. Make them aware, the people who are not knowing about this campaign, why it is necessary to vote, how it is important. So, moving further with the program, I would like to quote, उंगली पर लगी सिहाई सिर्फ निशान नहीं है, आपकी शान है, देश की पहचान है, लोकतंत्र की जान है, और आपके अधिकार का सम्मान है. So moving further with the program, there is a few things that Ravi, our head boy, would highlight in his speech. Please welcome him with a huge round of applause. Coordinator ma'am, all the respected teachers and my dear friends. Today, I, Ravi, is going to deliver my speech on the importance of voting. मतदान है देना हमारा अधिकार, इसका प्रयोग कर बने देश के विकास में भागीदार. मतदान हमारे देश में किसी उत्सव से कम नहीं है. भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां हर एक नागरिक को अपनी राय देने का अधिकार है. वह स्वतंत्र होकर देश के विकास के लिए वोट दे सकते हैं. प्रत्येक नागरिक को अपनी समझदारी एवं सूझबूझ के साथ मत देना चाहिए. नागरिक को अपने जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और मतदान को गंभीरता पूर्वक देना चाहिए. मतदान ही निर्धारित करता है कि देश या किसी प्रदेश का शासन कौन चलाएगा. भ्रष्ट नेता तभी चुनाव जीतते हैं जब सभी लोग मतदान का हिस्सा नहीं होते. देश के लोगों को मतदान की ताकत को समझना चाहिए ताकि उनके वोट से देश की प्रगति हो सके. उनका एक वोट देश की तकदीर बदल सकता है, देश में परिवर्तन ला सकता है तथा देश का विकास कर सकता है. देश का विकास सर्वप्रथम जनता के हाथों में है. इसका सही उपयोग देश को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है.
इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। Your mother tongue also. So now we have our head girl, Gurneet, to express her views on this topic. Please welcome her. Thank you, ma'am. If you don't take interest in politics, it won't mean that politics will not take interest in you. A very good morning to Honorable Chief Guest, management, principal sir, vice principal sir, respected teachers and all my dear friends. Today I, Gurneet Kaur, is here to express my views on power of voting. Once Abraham Lincoln said, the democracy is of the people, by the people and for the people. It means that the people of a democratic country can select their representatives but through elections. But the importance of election has become lost in the hustle and bustle of our lives. While everyone sits and complains about this and that and suggests that the government should change this and that, the elections come and go without half the population paying attention. It is our right as well as our duty to vote. Every vote counts. Though it seems like an endless sea of people are there to vote, your vote counts. When the national attitude changes from thinking that my vote doesn't make a difference, there's no such thing as a vote that doesn't matter, then the numbers increase and the multitude of people voting make a difference. The responsibility lies with every one of us. At last, I would like to request all our adults to vote and to vote wisely in this election, as democracy is based on the conviction that there are extraordinary possibilities in ordinary people. Thank you very much. Thank you. That vote is precious and it is the most powerful and non-violent tool we have in a democratic society, and we must use it. So there are few things that we keep in mind. So here are two small children who would we like to give you slogans on this day. So there are Madhav and Tanisha, head girl of junior section. They would like to give you some slogans. अपने सारे काम, पहले चलो करे मतदान. छोड़ दो अपने सारे काम, पहले चलो करे मतदान. Good morning to all. Myself Tanisha Mahendru from class 5th A. Today I am going to present my views on the topic the power of voting. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हर भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल या इससे अधिक है, उसे मतदान करने का अधिकार है. देश के नागरिकों को यह अधिकार भारत के संविधान ने दिया है. हर एक देशवासियों को 5 वर्ष में अपने देश, प्रदेश और नगर पंचायत के प्रतिनिधियों को चुनने का हक है. इसलिए मतदान करना जरूरी है. धन्यवाद. थैंक यू बेटे. तो बेटे इनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए एक बार जोरदार तालियां. ये छोटे बच्चों की बहुत अच्छी कोशिश है. वाले चुनाव की आओ मिलकर सब एक अभियान करेंगे, आओ मिलकर हम सब मतदान करेंगे. अम्मा बहना काकी चाची सुन लो तुम भी भैया भाभी, ये चुनाव जल्द आने वाले हैं. घर घर पहुंचेंगे नेताजी, सबके सवाल सच की झूठ पहचान करेंगे. आओ मिलकर हम सब मतदान करेंगे. जैसे फूल फूल चुनकर ही चमन बनता है, वैसे वोट वोट जोड़कर प्रजातंत्र का भवन बनता है. हर एक मतदान कीमती है देश की नजर में. खबर ये पहुंचा दो सारे शहर में. हम सब मिलकर गणतंत्र का गुणगान करेंगे. आओ हम सब मिलकर मतदान करेंगे. So
here is a small presentation from the senior section girls. There is a group song on this election campaign. Please. चुनाव में कीजिए अपने मत का दान हो, इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान। मेरा देश महान बनेगा, मेरा हिंदुस्तान बढ़ेगा, यहाँ करने से मतदान। इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान हो, इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान। यह लोकतंत्र का उत्सव है, इसे खुशी खुशी है मनाना। यदि कोई जरूरी काम है तो मतदान के बाद ही जाना, मतदान के बाद ही जाना। क्योंकि अपना मत ही तो है, क्योंकि अपना मत ही तो है अपना स्वाभिमान। इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान हो, इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान। जात पात में मत पड़ना और तुम यूं बहकना जाना। एक बार जो गलती की फिर 5 साल पछताना, फिर 5 साल पछताना। क्योंकि वोट डालना भी तो है, वोट डालना भी तो है पुण्य कार्य के समान। इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान हो, इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान। ऐसा नेता चुनना है जो वोट का मान बढ़ाए, लोकतंत्र के मंदिर को वो दूषित ना कर पाए, वो दूषित ना कर पाए। दुनिया में कहलाएगा, दुनिया में कहलाएगा मेरा हिंदुस्तान महान। इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान हो, इस चुनाव में कीजिए 100% मतदान हो, इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान। थैंक यू। Presentation for you people to understand the importance of मतदान। तो आप घर पे क्या कहेंगे? छोड़ो सारे काम और करें चले मतदान। So I would like to request our chief guest Mr. Sanjeev sir to kindly come and share his view on this program, sir. Please welcome him, children. सभी लोगों को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? एक बार आवाज से बताएं। ठीक है। मैं रिस्पेक्टेड एमडी मैम और रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर और गोल्डन फ्लावर के जितने भी टीचर स्टाफ है और स्टाफ, आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपने स्कूल में मतदाता दिवस के अवसर पर आपको जागरूक बनाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी प्रिंसिपल साहब और एमडी मैडम से, और उन्होंने समय दिया है। मैं आप लोगों के बीच में ऑन बिहाफ ऑफ एसएसबी आया हुआ हूं कि एक जो वोट होता है हमारे देश में उसके बारे में थोड़ा बताऊं, क्यों होता है, क्या जरूरत है और इसकी शुरुआत क्यों हुई थी, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों की क्लास में बताइए, जो पीछे जो खड़े हैं ब्लू ब्लेजर्स में जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का मॉनिटर 12th में कौन है? हाथ खड़ा करें। 12th क्लास का मॉनिटर कौन है? अच्छा ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। मॉनिटर आप लोग बताएं कैसे होता है? चुनाव करते हैं आप लोग उसका या स्कूल की तरफ से उनको नॉमिनेट किया जाता है? चुनाव करते हैं। एक बार जितने लोग हैं यहाँ पर, पहले जो ये इधर मेरे राइट साइड में जो खड़े हैं वो बताएंगे उन्होंने किस रंग की ड्रेस पहनी है। सबसे इधर जो 4 लाइनें हैं, 5 लाइनें, किस रंग की ड्रेस? नहीं, आवाज नहीं है अभी तक, अभी भी नहीं आ रही है। ओके नेक्स्ट,
नहीं, ग्रीन वाले इतने स्लो क्यों? मैरीगोल्ड से तेज आवाज होनी चाहिए। दोबारा बताइए। बहुत बढ़िया। उसके बाद बहुत अच्छा, रेड में जोश बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, नहीं ब्लू है ग्रीन है। एक बार ब्लू वाले इतना स्लो नहीं, ब्लू की सबसे तेज आवाज आनी चाहिए। ब्लू वाले बोले बहुत अच्छे। और प्यारे छोटे बच्चे जो बिल्कुल बाएं में खड़े हैं, उनका मैं कलर देख रहा हूँ, ये बहुत रंग बिरंगे हैं। बच्चों देखिए, यहाँ ना मैं आप लोगों से बताने आया हूँ, आप लोग अभी छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं। जो पीछे हमारे बच्चे हैं खड़े हैं ब्लू ब्लेजर में, वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। आप लोग भी छोटे से बड़े होंगे। मदर फादर को भी देखा होगा आप लोगों ने अपने घर में, दादा दादी को भी देखा होगा, नाना नानी को भी देख रहे होंगे। सभी अपने उम्र के साथ बढ़ रहे हैं। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? धूप लग रही है? धूप लग रही है? क्यों नहीं लग रही है? मुझे तो लग रही है। ठीक है, आप लोग थोड़ा बस 5 मिनट का पेशेंस रखिए। मैं अपनी जो बातें हैं मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद आप लोग फ्री हो जाएंगे। अभी आपके यहाँ मैम ने आपकी जो असेंबली में कंडक्ट करा रही थी, आपके जो सीनियर्स हेड बॉय हेड गर्ल थी और भी छोटे बच्चे थे, सभी लोगों ने आपको बोर्ड के बारे में बताया कि बोर्ड की इंपोर्टेंस क्या होती है। इतने अच्छे स्लोगन्स बताए हैं, इतने अच्छा एक मेलोडियस सॉन्ग गाया हुआ है, इतने अच्छे थॉट्स दिए हैं। अल्टीमेट है। मतलब मुझे लगता है मेरे यहाँ आने से पहले आपके स्कूल की और आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है। आप लोग 50% समझ गए हैं। चलिए, इसे जो वोटर अभी जो वोटर बनने वाले हैं पीछे, वो ताली नहीं बजा रहे हैं भाई। आप लोगों का नेक्स्ट नंबर है, अगले साल वोटिंग डालेंगे आप लोग। अच्छा ये बताइए, 18 ईयर्स में कौन पहुंच चुका है? 18 साल का कौन हो चुका है? हाथ खड़ा करें। 18 ईयर्स, वेरी गुड। एक हाथ खड़ा हुआ है और 2। अरे मैंने 18 पूरा 8 ईयर का नहीं पूछा, 8 ईयर वाला तो नहीं पूछा। 18 प्लस, ठीक है। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि भारत सरकार जो है या भारत देश जो है, ये एक लोकतांत्रिक देश है। लोग मतलब हम लोग हो गए, और तंत्र, जहां लोगों का तंत्र चलता है। भारत का संविधान बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो है वो वोटिंग होगी, और हम अपनी चॉइस का, अपनी पसंद का जो योग्य आदमी होगा उसको चुनेंगे जो हमारा देश चलाएगा। हम जैसे फोर्स की नौकरी में हैं, आपके सर मैडम लोग टीचर हैं, हम लोगों ने अपनी चॉइस की है और उस हिसाब से हम यहाँ आए हैं। सेम ऐसे ही देश के जो चलाने वाले होते हैं, जिसको कि हम लीडर्स बोलते हैं, वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर किसी भी फॉर्म में होते हैं। देश, प्रदेश, जिले के हिसाब से बटे हुए होते हैं, और जो हमारी कमान है, देश की कमान है, वो संभालते हैं और उसको चलाते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम अपने लिए कभी बुरा करें। तो हम लोग हमेशा अपना बेस्ट करते हैं, अपना अच्छा से अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे से अच्छी चीजें खाते हैं। अगर मार्केट में अपने मदर फादर के साथ जाते हैं तो अपनी चॉइस के हिसाब से बताते हैं कि हमको ये चाहिए, मदर फादर आपको प्रोवाइड कराते हैं। बच्चों, वोट भी ऐसा ही है, ये 5 साल में हर वर्ष आता है। अभी कोई एक आप लोग की दीदी बता रही थी, और ये स्टेट लेवल से लेकर सेंटर लेवल पे या नगर निगम चुनाव में हमेशा ये चलता रहता है। वोट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने एक बार गलत दे दिया तो आप 5 साल तक पछताते रहेंगे और आपकी जो चॉइस है वो पूरी नहीं हो पाएगी। आप कभी ट्रेन पकड़ने जा रहे हो और 1 मिनट से अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाती है तो होता क्या है, आपको दूसरी ट्रेन या दूसरे साधन मिल तो जाएंगे आपको अपनी लोकेशन में पहुंचने के, लेकिन वो आपने जो रिजर्वेशन या कंफर्ट पहले से सोच रखा था वो नहीं होता है, क्योंकि आपकी एक मिस्टेक से आपकी ट्रेन छूट गई होती है। सेम ऐसा ही वोट के लिए है। अगर आप लोग वोट सोच समझकर नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। भारत में लगभग 60% मैक्सिमम वोट जाता है। अगर 60% वोट की कास्टिंग होती है तो माना जाता है कि वो वोट या वो देश बहुत अच्छा चल रहा है। 60% में भी अगर एक विधानसभा एरिया लिया जाए तो वहां कम से कम 10 से 15% जिसको वोट मिलता है कैंडिडेट को, वो जीत जाता है। तो आप सोचिए, जहां पे 100 लोगों में से केवल 10 लोग वोट देकर आपको आपका विधायक बना देते हैं,
या आपका नेता बना देते हैं, वो आपका डेवलपमेंट का काम करता है। अगर आप ये सोच के जाते हैं कि सारे नेता ऐसे हैं, सारे नेता वैसे हैं, तो ये आप लोगों की गलती है, वो उनकी गलती नहीं है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग अपने मदर फादर या जो भी 18 साल की उम्र को पार कर चुका है, आपके घर में कोई भी हो, आपके पड़ोसी में है, उनको बोलिए कि मम्मी डैडी चाचा चाची मामा मामी दादा दादी आप लोग जाएं, भैया भाभी, और वोट करें। जिसको भी वोट करना है करें, लेकिन वोट जरूर करें। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पीछे बास्केटबॉल ग्राउंड में जो खड़े हैं, समझ में आ रहा है आपको? आप लोगों को पीछे समझ में आ रहा है? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं, जो मैं बोल रहा हूं आवाज जा रही है आप लोगों के पास? बास्केटबॉल ग्राउंड में जो खड़े हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये बताओ आप लोग, वोट डालने की मिनिमम एज कितनी होती है? 18 होती है। बहुत बढ़िया। उससे पहले ये 1989 से 21 साल की उम्र में दिया जाता था, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको चेंज किया और 18 वर्ष की उम्र में डाल दिया। अभी बता सकते हैं किन किन राज्यों में चुनाव होने जा रहा है? मालूम है आपको? बताइए बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। इधर कोई बता रहे हैं गोवा, पंजाब। बहुत बढ़िया। हिमाचल, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। सॉरी, हिमाचल ही, पंजाब। आप लोगों के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में कब होना है वोटिंग? जनवरी नहीं बेटा, फरवरी। ठीक है, 23 फरवरी को होना है। उस दिन पूरी छुट्टी रहेगी, स्कूल की भी छुट्टी रहेगी, मम्मी पापा की ऑफिस की भी छुट्टी रहेगी। तो आप उनको जरूर बोलिए कि वोट देने जाएं। वहां भी हमारी वर्दी पहने हुए लोग, चाहे हमारी वर्दी से थोड़ा अलग रंग हो, वो आपको वहां मिलेंगे और बहुत ही इज्जत के साथ और प्यार के साथ आपके मदर फादर का रिस्पेक्ट करेंगे और उनको वोट डलवाने में उनकी हेल्प करेंगे। और वहाँ सेल्फी पॉइंट भी है, और सेल्फी पॉइंट भी हम फोटो ले सकते हैं वहां पर। तो आप लोग वोट के लिए अपने मदर फादर्स को जरूर बताइए कि वो वोटिंग करेंगे। अच्छा, ये बताइए, मैं तो अपने घर से दूर हूं, चाहे प्रिंसिपल सर भी अपने घर से दूर हैं, तो क्या हम लोग वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं? कहाँ घर जाते हैं हम लोग? घर नहीं जाते हैं। हम लोगों के लिए बैलेट के द्वारा वोट डालने की परमिशन और भारत सरकार ने अनुमति दी होती है। उसके लिए हमारे पास जो कैंडिडेट होते हैं उनका एक डिटेल्स और कुछ और पेपर्स आते हैं। उसमें हम जो भी कैंडिडेट हमें पसंद होता है, हम उस पर टिक मार के उसको बंद करके और कंसर्ट विधानसभा में भेज देते हैं। मैंने भी अपनी कास्टिंग वोट की कल की है। तो भारत में सभी को वोट करने का अधिकार है। जितने भी लोग चुनाव में लगे हुए हैं वो सभी लोग वहां वोट करते हैं। कोई बच्चा बताए अभी 1 लाख रुपए कमाना चाहता है? 15 तारीख को बताओ कौन कमाना चाहता है, किसको चाहिए 1 लाख रुपए? हाथ खड़ा करें। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। तुम ऊपर आओ, आप ऊपर आओ, आओ ऊपर आओ। बाकी लोगों को नहीं चाहिए? कम बेटा, कम। कोई नहीं, आ जाओ। क्या नाम है आपका बेटा? नाम बताओ। अपूर्व। ठीक है, अपूर्व बोल रहे हैं कि हमें अगर 1 लाख मिले तो दे देंगे। इसके लिए बहुत अच्छा मैं बता रहा हूँ, आप लोग इतने क्रिएटिव और इतने आप लोग का दिमाग अच्छा होता है, बच्चों का ग्रो करता है कि आप लोग जो भी चाहें अच्छा काम कर सकते हैं। एक बच्चे का गाना भी आया हुआ आप लोगों ने सुना होगा, छोटा बच्चा है गाना गाता है। वो मैं गाना नहीं यहाँ कहूँगा गाने के लिए। इसके लिए भारत सरकार या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 तरीके की कैटेगरीज बनाई है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और जो प्रोफेशनल्स लोग हैं उनके लिए, और अमेच्योर जो लोग हैं, शौकीन है किसी चीज के लिए, वो वीडियो बनाते हैं। जैसे आप लोग टिकटॉक बनाते हैं, लोग टिकटॉक या वीडियो बनानी है आप लोगों को मैक्सिमम 1 मिनट की, जिसमें आप लोग वोटिंग के फायदे जो है वो बताएंगे कि वोट डालने से क्या फायदा है, वोट क्यों डालना चाहिए, किस वेबसाइट पे भेजना है वो आप लोग भेजेंगे। और अगर आप लोगों का सिलेक्ट हो गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको वोटिंग करेगा। लेकिन इसमें आप लोगों की पढ़ाई किसी भी तरीके से हैम्पर नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? फिर आप लोग पेंटिंग, यहाँ 2-4 बोर्ड पड़े थे, कहाँ गया सर?
देखो ये दीदी लोगों ने, भैया लोगों ने जो बोर्ड ले रखा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार मतदान करना हमारा अधिकार, ये स्लोगन है। अगर आप कुछ ऐसा क्रिएटिव स्लोगन बनाते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन को लगता है कि इस बच्चे द्वारा बनाया गया है और बहुत अच्छा है, तो भी आपको प्राइज मिलेगा। फिर आपने देखा पेंटिंग लिखा हुआ है जिसमें कि लगभग 4 धर्मों की, उसमें जितने भी इंडिया में धर्म हैं उनको एक बनाया गया है, बोर्ड किया गया है और खुशहाली दिखाया गया है। एक बच्चा हाथ में लेके इंडिया के मैप को दिखा रहा है, तो इससे ये बता रहा है कि हम सभी जाति धर्म से अलग हटके बिना किसी के दबाव में आके वोट डालेंगे तो हमारा देश इसी तरीके से महान होगा। तो उस तरीके का भी बना सकते हैं आप लोग। इसके अलावा आप लोगों के पास कोई मेलोडियस सॉन्ग हो, चाहे वो आप लोग कोरस में कर रहे हो या सिंगल कर रहे हो, उसको भी अगर आप डालेंगे तो आपको उससे फायदा होगा। और इसकी जो वोट डालने की कास्टिंग है और जो वेबसाइट है साहब आपको बता देंगे, प्रिंसिपल साहब, और उसके बाद आप लोग वहां भेजेंगे तो आपको प्राइज मिलेगा। मेरा बस इतना ही आप लोगों का कंसर्ट था बताने का कि आप लोग अपने जो भी घर में बड़े लोग हैं जो वोट डालने का अधिकार रखते हैं उनको बोले कि वो वोट डालें। बोलेंगे आप लोग ऐसा? बोलेंगे? इतनी तेज बोलिए कि बगल वाले स्कूल में आवाज जाए। बोलेंगे? बहुत बढ़िया, जोश आप लोग का अच्छा है। एक छोटा सा बेटा और चीज बताना चाह रहा हूँ, ये कंसर्न नहीं है, फिर भी कमांडर सर ने बोला था कि मैं आप लोग को बता दूं। आप लोग बहुत सारे बच्चे, आप इवन आप, मैं, मेरे बच्चे, किसी के भी बच्चे आजकल मोबाइल या वीडियो गेम से अलग नहीं है। हम सभी लोग डेली मोबाइल या नेट का यूज करते हैं, तो नेट का बहुत ही सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। अभी आप लोगों की यहाँ ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने से पहले लगभग 2 साल कोरोना का जो समय रहा है, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस की हैं। इन क्लासेस के दौरान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे है वो पर वीक के हिसाब से बताता है कि लगभग 5000 से ज्यादा जो लोग भी नेट के थ्रू या मोबाइल्स के थ्रू क्लासेस कर रहे हैं, तो जो साइबर क्राइम करते हैं उनके मोबाइल या आईडी को हैक करके कोई ना कोई क्राइम कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, मेरे पास रखा हुआ है। तो इसमें जब भी आप कुछ इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, लिंक वगैरह कुछ भी देखते हैं, तो उसको अपडेट करिए और अननोन लिंक पे मत हाथ डालिए। मान लीजिए क्लास 2 या 4 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके छोटे भाई हैं, बहन है, अगर उनके पास कुछ ऐसी अट्रैक्टिव चीज आती है वो तुरंत उस पर क्लिक कर देते हैं और वो मालूम है उनको, क्राइम करने वालों को, कि बच्चों को क्या पसंद आएगा। और आप या मेरे बच्चे, सभी लोग हमारे अपने माँ के मोबाइल से यूज करते हैं और सारे मोबाइल्स में हम लोगों के अकाउंट नंबर और पर्सनल डिटेल्स होती हैं जिसको कि हैकर्स हैक करके बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो इसके लिए 5 या 6 डायरेक्शन से मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूं। जब भी आप वर्चुअल कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं तो उसके बीच में कोई आपको देखे होंगे, बीच में ऐड आ जाता है, कभी कोई कोई चीजें आ जाती है। अगर ये बारंबार हो रहा है, अगर रिपीटेशन हो रहा है, तो उसको आप लोग अपडेट कराइए या उस डाटा को डिलीट कर दीजिए। और ये जूम, गूगल मीट, वेबएक्स सभी पर ये चीजें हो रही हैं। आपका आइडेंटिटी चोरी कर लेते हैं, बैंक की धोखाधड़ी कर लेते हैं, आपके एसएमएस, व्हाट्सएप, पिक्चर मर्फिंग जो भी है, कैमरा, इसकी भी हैकिंग हो जाती है और बैठे बैठे बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं और आपको मालूम भी नहीं चलेगा और आपके मोबाइल से भी चीजें हो जाती हैं। कोई भी अटैचमेंट अगर आपको लिंक के अलावा कुछ आता है तो उस पर जबरदस्ती ऐड ना करें, वो अटैचमेंट है वो गलत होता है, उससे बच के रहें। कोई भी मेलवेयर वाला मैसेज वगैरह इस तरीके का है उसको भी ऐड ना करें, उनसे बच के रहें। कोई भी एप्लीकेशन बहुत अब लेट हो गया है तो उसको लेटेस्ट वर्जन को अपडेट करें और उस हिसाब से उनको यूज करें। एक जो आप लोगों के लिए स्पेशली इसमें लिखा हुआ है कि क्लास अगर हो रही है आपकी और क्लास में बंद हो जाती है तो आपके जो कैमरे हैं उसको ढक के आपको दे दूंगा, सर कुछ देख लेंगे आपके लिए। इसमें लिखा हुआ है कि क्लास नहीं चल रही है तो डिवाइस कैमरों को कवर करके रखें। आप लोगों ने अभी एक पीछे 6 महीने पहले बहुत ही ज्यादा एक भारत सरकार का चल रहा था कि जासूसी हो रही है, नाम सुना था? क्या नाम था उसका? आप बताओ बेटा। Yes, speak loudly. हाँ देखो, इन्होंने बताया पेगासस।
ये मेरा जो मोबाइल है, सपोज दैट मेरे पास मोबाइल है, ये स्विच ऑफ भी कर दूं या ऑन भी कर दूं, मैं क्या बोल रहा हूं सब इसमें जा रहा है, ये हमें पता नहीं चलेगा। तो इस लेवल की जासूसी होती है। तो ये हमारे लिए कंफर्टेबल भी है और अनकंफर्टेबल भी है। अनकंफर्टेबल तब होगा जब हम इसको मिसयूज करेंगे और आपको समझ जाएंगे कि लड़का या बच्चा बहुत ही ज्यादा इस मोबाइल का बेकार में इस्तेमाल कर सकता है। तो आपकी मासूमियत का फायदा उठाते हुए वो सब आपको किसी ना किसी तरीके से ब्लैकमेल करेंगे। बाई मिस्टेक किसी से गलती हो जाती है, लेकिन उसको हमेशा अपने दिमाग में नहीं रखना है। गलती हो जा रही है तो उसको अवॉइड करना है, मदर फादर को बताना है, सर को बताना है, स्कूल में बताना है। अदरवाइज अगर आप एक चीज को छुपाने की गलती करेंगे, वो बार बार आगे आपको नुकसान पहुंचाएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इतना ही था। आप लोगों ने जो इतना कीमती समय दिया और इतनी देर तक जो स्टेमिना के साथ खड़े रहे हो, हमारे एसएसबी की तरफ से आपको सैल्यूट है। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूबल पॉइंट्स। तो बेटे घर जाके आपको लोगों को जागरूक करना है कि छोड़ो सारे काम, करने चलो मतदान। मेरा प्रोत्साहन बढ़ा दो। तो इसी श्रृंखला में मैं जगमीत सर से बोलना चाहूंगी, अगर वो भी अपने व्यूज शेयर करें। Respected Principal Sir, and all the faculty member of this beautiful institute, Golden Flower School. I would like to apologize क्योंकि मेरा थोड़ा हिंदी कमजोर है, क्योंकि मैं लेह लद्दाख से बिलोंग करता हूँ। आपने सुना होगा काफी ठंडा जगह है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आज हम लाइक फॉर व्हाट वी हैव कम हियर, इट्स अबाउट द वोटिंग थिंग। और स्पेशली एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जब एक कोटेशन चल रहा था, इलेक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट चूजिंग लीडरशिप बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर जनरेशन। एक चीज जब बताता है, एक चीज एक इनमें से ध्यान रख दिया था, तो उन्होंने इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो लीडरशिप है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको चूज करना है, क्योंकि इन रिस्पेक्ट टू एनी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, और यही चीज है जो एक हमारे जो डेमोक्रेटिक नेशन का सबसे एक एसेंस है, राइट टू कास्ट वोट। और वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू एबल टू कास्ट वोट, जबकि हमारे जो काउंटर पार्ट जो एनिमी स्टेट जैसे कि पाकिस्तान, हम स्पेशली मी JNK से में था, जब लद्दाख पहले JNK के एक हिस्सा था, और उसी का एक हिस्सा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। वहां पे एक चीज है कि मतलब कि जहां की हम अपने देश में JNK में पूरे इंडिया में जहां पे हम वोट कास्ट कर सकते हैं, वहीं जहां पे पाकिस्तान ने वहां पे ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पे उनको रिसेंटली तक वो अपना वोट तक कास्ट नहीं कर सकते थे, जिसका मतलब कि वो अपना एक लीडर भी इलेक्ट नहीं कर सकते थे। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट to this great nation for being able to cast vote, and whenever you turn 18 years old, और आपके फैमिली मेंबर भी हो, जो भी आपके बड़े ब्रदर हो, सिस्टर हो, या आपके फैमिली मेंबर माता पिताजी हो, तो उनसे एक चीज आपने जरूर ये आपने एडवाइस देना है कि कास्ट वोट and every vote counts। और इसी I would like to conclude with this thing, क्योंकि सूर्य देव का भी काफी क्या बोलते हैं हिंदी में प्रकोप पड़ रहा है और आप लोगों को ज्यादा टॉर्चर नहीं है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Today, for the commencement of the program, we would like to give the token of love from our school side to our guest by the MD ma'am and principal sir. So please sir and ma'am to give away the token of love to our guests.
clap for him. इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला है. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्कूल परिसर में आने के लिए सर. Welcome and thanks to respected Deputy Commandant of SSB 39 Battalion. My dear students, there is no need to explain what happened today in the assembly. I hope you just hear very nicely. The program was regarding the awareness, voters awareness campaign. You people have to just inform your parents what happened in today's morning assembly and what is the importance of voting. Thank you very much to all of you to be the part of today's morning assembly. Thanks to our respected MD ma'am, once again to Deputy Commandant sir, Inspector sir, and all of you. Thank you, sir. Now at last get ready for the national anthem. Students, stand at ease. Attention. Stand at ease. Attention. Get ready for national anthem. Helps in keeping its true essence. It gives the right to people of the democratic country to choose their government according to their choice. Thus, there is a requirement of proper awareness to be spread among the people so that they don't miss casting their precious vote, because one vote can make or break the future of the country. Vote for the best, the one better than rest. Thank you. वीडियो देखने के लिए आपका सबका धन्यवाद. तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू SSB 39 बटालियन जिन्होंने आज अवेयर किया चुनाव के बारे में, वोट के बारे में. आप देख रहे थे गोल्डन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मॉर्निंग असेंबली, जिसके अंदर SSB 39 बटालियन द्वारा बच्चों को वोट की महत्ता बताई गई. तो वोट करना क्यों ज़रूरी, इसके बारे में बताया गया. तो आप धर्म, जात पात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब ना देखें, जात पात ना देखें. अच्छे नेता को ज़रूर वोट करें. वोट करना अधिकार है, क्योंकि अगर सही वोट करेंगे तभी हमारा भारत देश तरक्की कर पाएगा, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा पंजाब तरक्की कर पाएगा. इसलिए वोट करें. धर्म, जात पात के बहम में ना पड़ें. वोट करें. जय हिंद, जय भारत.